Dear students, good morning. This is the third part of our first chapter, a computer system. We have already done many of the features in the last previous two videos, and now in this third video we will do we will study about some other hardware devices also. Clear? So before that, what we have done, we should take a quick recap so that you can all remember what we have done in the last video. So in the previous video we have studied about CPU is the brain of computer. It processes all the instructions given to the computer. CPU brain का क्या CPU कंप्यूटर का क्या होता है, ब्रेन होता है, और जितने भी ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स हम उसको देते हैं वो सबको प्रोसेस करता है. CPU is made up of three main parts. These are MU means memory unit, CU means control unit, and ALU means arithmetic and logic unit. So we start with all these three. Then MU, memory unit, stores data and instructions. memory में क्या होता है, मतलब याद करना. जैसे हमारी memory होती है ऐसे ही कंप्यूटर का memory unit है. Okay, so it used to store data and instructions. Then CU, control unit. नाम से ही पता चल रहा है, controls and manages the working of all parts of computer. ये कंप्यूटर के जितने पार्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल भी करता है और उनको मैनेज भी करता है. कब कहाँ क्लिक किया है, कौन सा पार्ट कैसे काम करेगा, ओके, वो सारा मैनेजमेंट भी करता है ये. देन ALU, arithmetic and logical unit, performs all the arithmetic and logical operations. जितनी भी कैलकुलेशन का पार्ट होता है वो CPU का कौन सा पार्ट करता है, ALU. ठीक है. देन नेक्स्ट, कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप डेटा and instructions into the computer. A common keyboard has 104 keys. कीबोर्ड ज़्यादातर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को टाइप करने में यूज़ आता है. ओके. एंड जो कॉमनली कीबोर्ड हम लैब में देखते हैं, यही जो कॉमन कीबोर्ड्स आप घर में यूज़ करते हो उसमें नॉर्मली कितनी कीज़ होती हैं, 104 कीज़. Then we have also studied in the previous video that there are various types of keys on the keyboard. Keyboard has 104 keys and there are many types of keys on the keyboard. These are alphanumeric keys, alpha and numeric. This is a combination of two words, alphabet keys and number keys. So how many alphabets are there? 26. Yes, so 26 alphabet keys are there and 10 number keys are there starting from 0 to 9. Then control keys which used to control the working on computer or we can say on monitor. Okay, like home and page up, page down, insert, delete. Then function keys. How many function keys? 12 function keys are there. They are placed on the topmost row of the keyboard. कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाली रो फंक्शन कीज़ की होती है जिनका नाम कहाँ से होता है, F1 to F12. So there are 12 function keys. Then navigation keys. Navigation keys मतलब arrow keys. One for left, one for right, one for going up and one for going down on the monitor. So it helps us to move in all directions on the monitor. Monitor पे सब तरफ जाने के लिए how many arrow keys are there? 4 arrow keys. And these navigation keys are called arrow keys. Then numeric keypad. अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि कीबोर्ड पे राइट हैंड साइड को एक अलग से सेक्शन होता है. वहाँ सिर्फ नंबर कीज़ होती हैं, कैलकुलेशन वाली कीज़ होती हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, और एक एंटर की होती है. तो ये सब अलग से जो सेक्शन है नंबर्स का विद देयर साइंस फॉर द कैलकुलेशन, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दे आर कॉल्ड न्यूमेरिक कीपैड.
So alphanumeric keys, control keys, function keys, navigation or arrow keys, and numeric keypad. Then mouse is a pointing device. It is used to point, select and move any object on the screen with the help of mouse pointer that moves in the same direction as of the mouse. Mouse जो है एक pointing device है. Pointing मतलब हम उसको जहाँ एरो जाता है हम उसकी जगह जाते हैं ना, तो वो पॉइंट करता है उस ऑब्जेक्ट को. एक क्लिक करते तो सेलेक्ट करता है, डबल क्लिक करते तो ओपन करता है. Clear? So it is a pointing device. So from here we today start our topic, the hardware devices. Many of the hardware devices we are going to study in this chapter. The first one is touch screen. So it is a screen that is sensitive to touch. कहाँ देखा है आपने ऐसा? Yes, on smartphones we used to touch the object, and with the touching of the finger on the screen the object will open or we can easily do the work. The objects on the screen can be selected by touching with fingers, and the examples of touch screen are tablets, laptops, ATMs, cell phones. Cell phone means mobile phones. Yes, your smartphones. So these all are touch screens and a type of hardware devices. These are all the type of computer screens. Yes, your smartphone is also a type of a computer screen. So it is a touch screen which used to work with the touch of a finger on the screen. It is sensitive to the touch, and by this we can select and open and work on these devices. The next type of hardware device is scanner. Now what is this device? It is a device that reads the text or pictures printed on a paper. क्या मतलब हुआ इसका? ये जो डिवाइस होता है ये स्कैनर है. ओके, अब ये स्कैनर का क्या काम है? सपोज़ जैसे आप अपना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो. ओके, अब आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्यूटर पे करना है पूरा. कोई पर्टिकुलर पिक्चर है जो आपने ड्रॉ की है अपने प्रोजेक्ट में, एंड वो आपको अपने प्रोजेक्ट में कंप्यूटर में सेव करनी है. वो ड्रॉ आपने जो पेपर कॉपी में ड्रॉ की है वो आपको कंप्यूटर में लानी है. तो आप किसकी हेल्प से ला सकते हो? स्कैनर की हेल्प से. अगर आप वो ड्रॉ वाला पेज जो है, हम इस स्कैनर के ऊपर ये जो दिख रही है ना आपको, जिस पे लाइट चमक रही है, ये क्या होता है? ये एक तरीके का एक ग्लास की विंडो होती है. ओके, ग्लास का बना हुआ होता है ये शीट, और इसके ऊपर उसे रख देते हैं जिसको हमें कंप्यूटर में लाना है. ओके, उस जिस इमेज को हमें कंप्यूटर में लाना है उसके ऊपर रख देते हैं. जैसे आपने किसी कॉपी में कोई डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, आपको उसको कंप्यूटर में सेव करना है, तो उस ड्रॉ डायग्राम वाली पेज को आप इसके ऊपर रखोगे, इसका बटन प्रेस करोगे तो वो रीड करेगा उसको. क्या लिखा है? स्कैनर. दिस डिवाइस इज यूज्ड टू रीड द टेक्स्ट और पिक्चर्स प्रिंटेड ऑन अ पेपर. जो पेपर के ऊपर है ये उसको रीड करता है, and then it translate the information into a form that only a computer understands. और फिर जब ये कंप्यूटर में सेव करेगा तो उसमें करेगा जिसमें कंप्यूटर इसको समझता है. कंप्यूटर सारे डेटा को किस में समझता है? 0 and 1 की लैंग्वेज में. मैंने बताया था ना आपको. ओके, तो कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता है. कंप्यूटर मशीन है और हम इंसान हैं, तो हमारी भाषा कंप्यूटर नहीं समझता. तो कंप्यूटर जिस लैंग्वेज में समझता है, ये स्कैनर उस पिक्चर को उसमें कन्वर्ट करके कंप्यूटर में सेव कर देती है. इन दिस मैनर यू कैन सेव योर पिक्चर ऑन अ पेपर इन अ कंप्यूटर. जो आपके पेपर के ऊपर बनी हुई है, आप उसको कंप्यूटर पे स्कैनर की हेल्प से सेव कर सकते हो. देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर्स: फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर. And the details of these scanners you will study in your further classes. Okay, so scanner basically क्या है? This device is used to read the text or picture printed on a paper. पहली बात तो ये, पेपर से जब हमें कोई चीज़ कंप्यूटर में सेव करनी होती है तो वो हम स्कैनर की हेल्प से करते हैं. दूसरी बात क्या है? इट ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट ओनली अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड.
जो भी कुछ बुक या कॉपी से आप स्कैन कर रहे हो, जब वो कंप्यूटर में सेव होता है तो वो उस फॉर्म में होता है जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है. ओके. Now the next hardware device is printer. Yes, many of you have already seen this and you are aware what it is used to do. It is used to print the output of computer on the पेपर. जो कुछ भी कंप्यूटर पे मॉनिटर के ऊपर हम देख रहे हैं उसका अगर हमें पेपर के ऊपर आउटपुट चाहिए तो वो कौन देता है? प्रिंटर देता है. पेपर कंप्यूटर में जो कुछ सेव है उसका अगर हमें पेपर पे आउटपुट चाहिए तो वो हमें प्रिंटर देता है. It is used to print the output of computer on the paper. The output printed on paper is called हार्ड कॉपी. और ये जो पेपर के ऊपर जो हमें देखो मॉनिटर पे दिखाई देती है उसको हम छू नहीं सकते हैं ना, हाथ में नहीं ले सकते हैं, है ना. जैसे सपोज़ आपने पेंट में कोई पिक्चर ड्रॉ करी तो वो आप देख तो सकते हो मॉनिटर पे, बट यू कैन नॉट टच दैट पिक्चर और यू कैन नॉट टेक इन योर हैंड्स. So it is called soft copy. But if we give a printout of that picture with a printer, अगर हम उसका प्रिंट आउट लेते हैं प्रिंटर से, उस पेंट वाली पिक्चर का अगर आप प्रिंट आउट दो तो क्या है, वो पिक्चर वो ड्राइंग आप हाथ में ले सकते हो पेपर के ऊपर. ठीक है, तब उसे हम क्या बोलेंगे? हार्ड कॉपी. येस, द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी. Now next device is plotter. It is a kind of printer for computer. देखो प्रिंटर तो नॉर्मल प्रिंटर तो छोटा होता है, साइज़ में छोटा होता है ना, देखा है आपने लैब में. ठीक है, तो उसमें तो छोटे A4 साइज़ के पेपर पे ही प्रिंट आता है. लेकिन ये जो प्लॉटर होता है ये बड़े बड़े पेपर्स के ऊपर, जैसे कोई बड़ा सा बैनर, कलरफुल बैनर बनाना है, या ग्लॉसी शीट होती है ना, चिकना पेपर होता है ना, उसके ऊपर जो कलर्ड प्रिंट निकालना होता है, या कोई बड़ा सा कोई बैनर है, या किसी ट्यूशन सेंटर का कोई ऐड है, या कोई बड़ी सी ड्राइंग है. ठीक है, या बड़े बड़े मैप्स, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के मैप्स होते हैं, तो कलर्ड पेपर के कलर्ड पिक्चर बड़े बड़े पेजेस पे निकालने का काम कौन करता है? प्लॉटर. इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रिंटर फॉर कंप्यूटर्स. कंप्यूटर्स के लिए एक तरीके का प्रिंटर ही होता है ये, बट इट इज़ यूज टू प्रिंट ऑन अ वेरी लार्ज साइज पेपर. आप देख रहे हो पिक्चर में, इसमें कितना बड़ा सारा पेपर लगा हुआ है, पूरी शीट, जैसे चार्ट होता है ऐसे ये पूरा चार्ट जैसा इसके ऊपर प्रिंट निकाला जा सकता है इससे. वॉट इट्स नेम इज प्लॉटर. इट कैन ड्रॉ कॉम्प्लेक्स लाइन आर्ट इंक्लूडिंग टेक्स्ट बट वर्क वेरी स्लोली. अब क्योंकि क्या होता है इसके अंदर, ये इतने सारे कलर्स है, इतना बड़ा पेपर है, इसको इतने सारे कलर्स भी प्रिंट करने हैं, है ना, जो भी आपके मॉनिटर पे हैं, तो वो इसको प्रिंट करने हैं. अब देखो इसमें पिक्चर में भी दिखाया हुआ है ना. तो उसको प्रिंट करने के लिए इसको बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बड़े से पेपर पे करना है तो ये धीरे 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 कर पाता है. लेकिन इसकी जो क्वालिटी होती है बड़े पेपर पे प्रिंट निकालने की, वो बहुत अच्छी होती है. बड़े बड़े मैप्स, बड़े बड़े बैनर्स हैं, या चार्ट्स के ऊपर कुछ प्रिंट करना है, तो बड़े साइज़ के पेपर के अगर ऊपर आपको कलर्ड उसमें कुछ ड्राइंग या कुछ प्रिंट करना है तो कौन सा डिवाइस यूज़ होता है? प्लॉटर. प्लॉटर, it is a kind of printer for computer. Second point is, it is used to print on a very large size paper. And third point is, it can draw complex line art. Complex line art मतलब complex का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वाली ड्राइंग भी ये आराम से उसके आपने जो लिखा है वो भी टाइप कर सकता है ये मॉनिटर के ऊपर. जो आपने जो भी कुछ पेंट में काम किया है वो आराम से इसको प्रिंट दे सकता है, बट वर्क वेरी स्लोली. लेकिन ये काम धीरे धीरे करता है क्योंकि इसे बहुत सारे कलर्स बहुत बड़े पेपर के ऊपर प्रिंट करने होते हैं. So with this, today's hardware components are over. Remaining of the components I will show you in the next video, and some points to remember are here. So first is, touch screen is a screen that is sensitive to touch.
टच स्क्रीन नाम ही इसलिए है उसका क्योंकि वो स्क्रीन टच करने के लिए सेंसिटिव होती है। जैसे ही हम उसे टच करते हैं तो उस पर जो ऑब्जेक्ट है वो सेलेक्ट हो जाता है अपने आप और ओपन हो जाता है, या उसकी जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो अपना काम शुरू कर देता है। एग्जाम्पल टैबलेट्स, लैपटॉप्स, ATMs, सेल फोन्स एक्सेट्रा। देन द डिवाइस इज़ यूज टू रीड द पिक्चर ऑन और printed on a paper. स्कैनर इज़ यूज टू रीड द टेक्स्ट। स्कैनर क्या करता है, टेक्स्ट को रीड भी करता है, पिक्चर्स को, और वो किस में सेव करता है उनको, कंप्यूटर में। इट ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट ओनली अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज प्रिंटर इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ कंप्यूटर ऑन अ पेपर एंड द आउटपुट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटर जो होता है वो पेपर के ऊपर आउटपुट देता है। जो भी आप मॉनिटर पे देख रहे हो आप उसे प्रिंट दे के पेपर के ऊपर उसका आउटपुट लेते हो, एंड द आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। एंड द लास्ट वन इज इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रिंटर, विच वन, प्लॉटर। yes, plotter is a kind of printer for computers. It is used to print on a very large size paper, but it can draw complex with many colors, complex drawing, but it works very slow. So it is a plotter. Thank you students. With this third part of this chapter is over. So go through all the 3 parts so that you can revise all these, and if you have any problem you can message your question on my WhatsApp number, and please send your feedback whether you are able to understand the videos or not, and go through all the 3 videos so that you can remember what we have already studied in this chapter. Okay, good day.